70 to 80% blockage patients actually don't need surgery. When my father suffered heart attack in the year 2004, I was an emergency physician for my father. I was everything, whatever roles I could have played for him in those 17 days of his admission. During those 17 days of heart attack, he suffered 2 heart attacks in the hospital. He suffered a stroke, he suffered a renal failure, and so many things were happening to him in spite of all the advanced modern medicine treatments that we were doing for him. मैंने जब मेरे डैड को खो दिया तो जो अंदर फ्रस्ट्रेशन था, वो फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने के लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा था. 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास. सबसे पहला था कि वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल उस पर गुस्सा निकाल दे, या तो फिर दूसरा उस डिसीज़ पे गुस्सा निकाले जिस डिसीज़ ने मेरे फादर की हालत की थी. I chose the second option and the fight against heart disease began from that day itself. So आज माधवबाग के 350 क्लिनिक और 4 हॉस्पिटल्स, यहाँ पे हर साल साधारण 30 to 40,000 पेशेंट्स रिवर्स फ्रॉम देयर डिसीजेस. 6 घंटे का एपिसोड मतलब. तो हार्ट अटैक जो आता है वो ब्लड क्लॉट के वजह से आता है. जो खून की नली थी, उस खून के नली में जो ब्लड दौड़ रहा था, बीच में ब्लड क्लॉट निर्माण हो गया. तो ब्लड क्लॉट सारे खून को ब्लॉक कर देता है, और खून को ब्लॉक करने की वजह से उस हार्ट के मसल के पास खून का सप्लाई पहुंचना बंद हो जाता है, और वो 6 घंटों तक की मारामारी चलेगी. You have mentioned that Ayurveda's history is more than 5,000 years. Then why India hasn't take the global ownership of this medical science? Normally what happens, to take the global ownership, there are 2-3 multifactorial things which are responsible. सबसे पहला क्या होता है, राजाश्रय. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स आयुर्वेद, सो ये जब राजाश्रय आ जाता है, आयुर्वेद को एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है. पंचकर्म में एक स्पेसिफिक थेरेपी हमने कॉइन की है जिसे कहा जाता है इस्चेमिया रिवर्सल प्रोसीजर. इस्चेमिया मतलब खून का सप्लाई कम पड़ना, उसे इस्चेमिया कहते हैं. तो उसको रिवर्स करने की प्रोसीजर है. मैंने पढ़ा था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आप घर में अगर ऑयल यूज़ लाओ तो 80% कम लाओ, एंड उसमें से भी आप 80% कम यूज़ करो. वेरी ट्रू. ये जो कंसेप्ट है कि तेल कम इस्तेमाल करो, ये कंसेप्ट के साथ और हमने 10 कंसेप्ट जोड़ दिए हैं कि व्हाट आर यू सपोज टू ईट एंड व्हाट आर यू नॉट सपोज टू ईट. कभी आयुर्वेदिक से साइड इफेक्ट्स होते हैं? टुडे ऑन क्यूरियस माइंड्स वी आर जॉइन्ड बाय अ विजनरी who is transforming the way India prevents and treats heart disease. Dr. Rohit is the founder and managing director of Vaidya Sen Ayurved Lab, which is popularly known as Madhavbag. It is India's largest Ayurvedic cardiac healthcare network, a pioneer in combining Ayurveda, modern diagnostics, and evidence-based treatment. He has impacted the lives of over 1 million heart patients. He believes that surgery should be the last resort and lifestyle is the first medicine. But before you watch the episode, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर पॉडकास्ट ला सकें. एंजॉय द शो. Welcome to Curious Mind, sir. Thank you. You were trained under modern medicine, but you have dedicated your life to Ayurveda. क्या trigger point था which makes you believe that Ayurveda medicine can reverse heart disease? There are several such trigger points. Like for example, if we go back into the history, the first most important trigger point for me was, if you go back into the history, you will see that allopathy, the modern science, has come up in last 200 years odd. 200 साल पहले एलोपैथी था ही नहीं. मतलब if at all you go into the history, while Chhatrapati Shivaji Maharaj and all those kings, they had no allopathy access at that time, and that was an era of wars. Okay, जहाँ पे highest medicine requirement. So when I realized this, I started learning about it, how this could be possible. ना तो कई बार मुझे फिर बाद में जैसे मॉडर्न मेडिसिन जैसे मैं पढ़ रहा था, आई रियलाइज दैट देयर आर सेवरल सच मेडिसिन्स इन एलोपैथी which have their origin from Ayurveda. Okay. Like for example, the strongest cardiotonic medicine
हार्ट के लिए सबसे मजबूत करने वाला जो मेडिसिन है, डिगॉक्सिन कहते हैं उसे एलोपैथी में, दैट इज नथिंग एल्स बट अ प्लांट कॉल्ड एज रुद्रपत्री फ्रॉम आयुर्वेदा. ओके. इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर पे काम करने वाला एलोपैथी का मेडिसिन कॉल्ड एज रिसरपाइन, दैट इज नथिंग एल्स बट सर्पगंधा फ्रॉम आयुर्वेदा. ओके. इफ यू टॉक अबाउट द $multi-billion इंडस्ट्री ऑफ इकोस्प्रिन, जो खून पतला करने वाली गोली होती है, जिसको बीपी रहता है वो यूज. हाँ, तो ये जो मेडिसिन है ये एलोपैथी की सबसे $multi-billion इंडस्ट्री है. ये मेडिसिन जो इकोस्प्रिन है, इसका जो ओरिजिन है दैट इज नथिंग एल्स बट जलवेतस फ्रॉम आयुर्वेदा. और आज भी ये सब प्लांट्स है. एब्सोल्युटली सबके सब अवेलेबल है. आयुर्वेद में तो उसके ऊपर ग्रंथ लिखे हुए हैं. ओके. सो अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद इज नथिंग एल्स बट द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. ओके. मैं जब मॉडर्न मेडिसिन पढ़ा हूँ, हमारे सर्जरी के जो बुक्स होते हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक यही लिखा होता है कि द फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुता. ओके. सो सुश्रुत इज नथिंग एल्स बट द आयुर्वेदिक लिटरेचर जिसने लिखा हुआ है वही सुश्रुत. तो आप अगर बाहर के देशों में जाओगे तो उधर सुश्रुत के पूरे आइडल्स होते हैं जिसको बिफोर सर्जरी स्टार्ट्स दोज पीपल वर्शिप सुश्रुत. सो वेस्टर्न कल्चर फॉलो दिस. वेस्टर्न कल्चर, अभी फॉर एग्जाम्पल सर्जरी में द फर्स्ट आई सर्जरी वॉज रिटन बाय सुश्रुता. द फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी वॉज सुश्रुता. सो ऑल दीज सर्जरीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा so many years back, 5,000 years back. If you read the Ayurvedic literature, you would see that allopathy and Ayurveda are not different sciences. They are the same science, just उन्होंने कन्वे करने का उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है. ओके. That is the difference. When I realized this, यार ये दोनों सेम ही है. And at the same time, when I had a huge amount of backing from my home, मेरे घर में सारे के सारे आयुर्वेदिक लोग थे, मैं अकेला मॉडर्न मेडिसिन वाला था. Okay. So when I understood this side of relevance of Ayurveda, and when I was good in allopathy also, I tried to convey those things in the same manner. And at the same time, when my father suffered a heart attack in the year 2004, I was an emergency physician for my father. I was my son. I was everything, whatever roles I could have played for him in those 17 days of his admission. During those 17 days of heart attack, he suffered 2 heart attacks in the hospital. He suffered a stroke. He suffered a renal failure. And so many things were happening to him in spite of all the advanced modern medicine treatments that we were doing for him in those 17 days. और 17 दिन के बाद मैंने जब मेरे डैड को खो दिया, तो जो अंदर फ्रस्ट्रेशन था वो फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने के लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा था. 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास. सबसे पहला था कि वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल उस पर गुस्सा निकाल दे एज यूजुअल लोग करते हैं वैसा, या तो फिर दूसरा उस डिसीज़ पे गुस्सा निकाले जिस डिसीज़ ने मेरे फादर की हालत की थी. I chose the second option and the fight against heart disease began from that day itself. सो आज माधवबाग के 350 क्लिनिक और 4 हॉस्पिटल्स, यहाँ पे हर साल साधारण 30 to 40,000 पेशेंट्स रिवर्स फ्रॉम देयर डिसीजेस. एंड एवरी पेशेंट व्हेन ही रिवर्सेस फ्रॉम द डिसीज, आई से सॉरी टू हिम. या आई कुडंट हेल्प यू, आई विल बी हेल्पिंग अदर्स एंड सेइंग सॉरी टू. But today you will be more happy. Absolutely, absolutely. And I'll still make him more happier by making the whole nation disease free. Perfect. What is माधवबाग बेसिकली? क्या रहता है इसका फंक्शनिंग पूरा? कैसे होता है? नाउ माय फादर्स नेम वाज माधव साने. So many people keep me asking about it. Why is it called as Madhavbag? So whatever my father taught me, when he was alive, he always used to tell me, "अरे आयुर्वेद सीख लो, आयुर्वेद सीख लो." But I was a fond lover of allopathy. So मैं यूजुअली उनको हमेशा ना करके बाजू में एलोपैथी मेरा खुद का मैं करता था. Same. My mom said they are strong believer of Ayurveda, but my father said they are the believer of allopathy. सबके घर की कहानी यही होती है. But when I lost him, from that day itself I started learning Ayurveda.
एंड वो 2 साल जो थे वो आयुर्वेद में इतना सीखा मैंने, इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम माधव बाग रखा हुआ है कि इंस्पायर्ड बाय हिम, that he, when he was alive, he asked me to learn Ayurveda, but after he has left this world, he still inspired me to learn Ayurveda, and hence whatever I have learned, that has been named as Madhav Bagh. अब माधव बाग में होता क्या है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है. द होल ट्रीटमेंट लाइन इज प्योर आयुर्वेदा, एंड दैट हैज़ नो हेवी मेटल्स यूज्ड. ऐसे कोई भी जो लोगों के दिमाग में होता है कि आयुर्वेद में हेवी मेटल्स होते हैं वगैरह वगैरह, अपने माधव बाग के चिकित्सा में एक भी हेवी मेटल यूज़ नहीं किया जाता, पूरा नेचुरल. सो ये पूरा नेचुरल थेरेपीज जो होती है, ट्रीटमेंट जो होती है, वो आयुर्वेदिक पंचकर्म की चिकित्सा होती है एंड आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन होते हैं. बट द यूनिकनेस ऑफ माधव बाग इज, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ, पंचकर्म और आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ, वी हैव क्लब्ड दीज ट्रीटमेंट्स विथ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस बिफोर एंड आफ्टर द थेरेपी. क्योंकि जब मैं एलोपैथी किया करता था और मेरे दिमाग में हुआ करता था एलोपैथी नहीं, मतलब आयुर्वेद मुझे नहीं करना है, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद में जो कुछ भी ट्रीटमेंट होती है उससे पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं, ये समझने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था. Hence I clubbed the Ayurvedic therapies with modern investigations before and after the therapy. सो माधव बाग का यूनिकनेस ये है कि चिकित्सा के पहले जो आपके रिपोर्ट्स होंगे वही रिपोर्ट्स हम चिकित्सा के बाद करा के दिखा देते हैं कि ये सूर्य, ये जयद्रथ इतने आप इम्प्रूव हो गए हो. सो द होल इम्प्रूवमेंट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन पेपर्स, on the research, on the usual pathology reports, CT angiography reports, या तो फिर stress test reports, 2D echo reports. इन reports में हम दिखा देते हैं आपकी पहले ये हालत हुआ करती थी, अब ये इतनी improve हो गई है. It's completely verified. Absolutely. Hence the modern medicine people like cardiologists also accept this कि ये patient इतना improve हो गया है. एंड बेस्ड ऑन दिस माधव बाग का यूनिकनेस ये है कि इसके वजह से हमने आज तक 150 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं. वी आर द ओनली आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ पब्लिश्ड मोर देन 150 रिसर्च पेपर्स इन एलोपैथिक peer reviewed journals, not in Ayurveda journals. So we have published ourselves in international allopathic journals like Lancet, World जो काउंसिल होते हैं उसके ऊपर, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के सेशंस में हमने पब्लिश किया है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिसिन में हम लोग ने पब्लिश किया है. ऐसे कई सारे जर्नल्स हैं जहाँ पे वी हैव पब्लिश्ड आवर पेपर्स कि ये दिखाता है कि माधव बाग की थेरेपी जो है प्योरली साइंटिफिक है एंड एफिकेसी इज बिन प्रूवन. ओके, क्या था वो रिसर्च पेपर में जो आपने पब्लिश किए थे? कई बार ना ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के वजह से एक्चुअल पेशेंट इम्प्रूव होता है क्या, ये सवाल होते हैं. तो कार्डियोलॉजी में द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव इम्प्रूव्ड इन योर हार्ट एफिशिएंसी और नॉट, ये देखने के लिए सबसे ईजीएस्ट टेस्ट होती है स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें यू आर सपोज टू वॉक ऑन अ ट्रेडमिल. कार्डियो पे जो रन करा, तो वो लगाने के ईसीजी लगा करके हम लोग देखते हैं कंप्यूटर पे वेदर द ब्लड सप्लाई टू योर हार्ट इज़ परफेक्ट और नॉट. तो ये होता है जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हार्डली वो 2 से 4 मिनट ही चल पाता है उस ट्रेडमिल के ऊपर. उसके चेस्ट में जो हार्ट के ऊपर खून का सप्लाई नहीं पहुंच रहा, इसके वजह से बहुत कम चल पाता है. लेकिन after 7 days, after 1 month, after 3 months, when we repeat this stress test, we see that the patient has completed the stress test running protocol without any blood supply lack to his heart. Okay. तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट होती है. वैसे ही स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर एक रिपोर्ट होता है, उसे कहते हैं थैलियम स्कैनिंग स्ट्रेस टेस्ट. मतलब थैलियम का जो डाई होता है वो रेडियो आइसोटोप डाला जाता है और हार्ट के पिक्चर्स लिए जाते हैं थ्रू गामा कैमरा. वो भी रिसर्च पेपर पब्लिश करके दे दिया है कि अगर किसी को यही चाहिए देखने के लिए कि ये तो दौड़ने का ठीक है, ईसीजी वगैरह पे ठीक हो गया, लेकिन थैलियम स्कैनिंग, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग बोलते हैं उसे, तो वो सबसे दुनिया में सबसे बड़ी टेस्ट है कार्डियोलॉजी में. तो उस पर भी हमने दिखा दिया है कि हार्ट के पास आने वाला ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाता है.
सिर्फ यही नहीं, 2D इको करके एक होता है, जैसे सोनोग्राफी पेट की करते हैं वैसे हार्ट की सोनोग्राफी करते हैं, उसे 2D इको कहते हैं। 2D इको में भी दिखा के दिया है कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट अटैक आने के बाद जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट अपनी आयुर्वेदिक कराने के बाद माधव भक्त की, उसके बाद फिर से 2D इको करा के दिखा देते कि दिस इज हाउ योर इजेक्शन फ्रैक्शन हैज इम्प्रूव्ड। नॉट ओनली 2D इको सिंपल, उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी आई हुई है, GLS कहते हैं उसे, ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्कोरिंग, उस पर भी दिखा के दे दिया है कि आपके हार्ट का GLS स्कोर इम्प्रूव हो रहा है। कई लोग ऐसा पूछते हैं ब्लॉकेज का क्या होता है, ब्लॉकेज कम होते हैं क्या? तो वी हैव शोन इट विद अ CT एंजियोग्राफी रिपोर्ट, जिसमें हम लोग ने वॉल्यूमेट्रिक प्लाक असेसमेंट का सॉफ्टवेयर उस पर लगता है, वो सॉफ्टवेयर लेकर के ब्लॉकेज जो आजकल 70%, 80%, 90% बोला जाता है, हमने उस ब्लॉकेज को, जो इंटरनेशनल स्कोरिंग पैटर्न है, तो ब्लॉकेज का लेंथ, ब्लॉकेज का ब्रेड्थ और ब्लॉकेज की विड्थ, ये टोटल करके, जैसे हम ये घर की नॉर्मल साइज हम लोग पूछते कितने स्क्वायर फीट का घर है, वैसे ब्लॉकेज को गिना जाता है क्यूबिक मिलीमीटर्स में। तो वो क्यूबिक मिलीमीटर में कितना ब्लॉकेज कम हुआ है ये भी दिखा के दे दिया है। तो लोगों के ये जो सवाल होते हैं कि आयुर्वेद आपका स्टैंडर्डाइज है क्या, माधव बाग में ईच एंड एवरी थेरेपी दैट इज परफॉर्म्ड इज स्टैंडर्डाइज एंड दैट हैज बीन प्रूवन विथ एवरी रिसर्च पेपर। नॉर्मली जिस हार्ट पेशेंट को ब्लॉकेज होता है तो इन कार्डियोलॉजी 2 ऑप्शंस रहते हैं, अगर मल्टीपल ब्लॉकेज है तो बाईपास करेंगे या फिर स्टेंट रखेंगे। आयुर्वेद में हाउ यू ट्रीट पेशेंट? सिंपल, कैसे होता है, ब्लॉकेज अगर किसी को है तो ब्लॉकेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेदर दैट ब्लॉकेज इज एक्चुअली ब्लॉकिंग द ब्लड सप्लाई और नॉट। जैसे आपने देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी जो है नारायण हृदयालय वाले, उन्होंने कोट किया था कि 70 to 80% ब्लॉकेज पेशेंट्स एक्चुअली डोंट नीड सर्जरी। ये उन्होंने खुद ने कोट किया हुआ है। ओके। और इसी के ऊपर से ये भी सच है कि ये ब्लॉकेज के पेशेंट एक्चुअली उनका ब्लड सप्लाई 90% टाइम्स नॉर्मल ही रहता है। तो ऐसे टाइम पे अगर ब्लॉकेज के पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी बोली गई हुई है, तो उनकी पहले दूसरे इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, जिससे खून का सप्लाई एक्चुअल में कितना आ रहा है हार्ट को ये गिनना ज़रूरी है। उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है, उसके लिए स्ट्रेस थैलियम हो सकता है, उसके लिए GLS स्कोरिंग हो सकता है, उसके लिए FFR नाम की एक इन्वेस्टिगेशन वो हो सकती है। तो आज दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, तो FFR, एंजियोग्राफी में FFR किया करते हैं। तो ब्लॉकेज के पहले कितना खून था और ब्लॉकेज के आगे कितना खून जा रहा है, तो FFR वो पूरा रिपोर्ट बनता है। यस, वो पूरा एंजियोग्राफी के टाइम करते हैं और उसका रिपोर्ट बनता है। तो उस FFR में भी हमने दिखा के दे दिया है कि ब्लॉकेज के पहले, मतलब ट्रीटमेंट के पहले ब्लॉकेज के इधर जो खून था वो ट्रीटमेंट के बाद कितना इम्प्रूव हो गया है। ओके। सो ब्लॉकेज की थेरेपी जो हम करते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है पंचकर्मा। पंचकर्म में एक स्पेसिफिक थेरेपी हमने कॉइन की है जिसे कहा जाता है इस्चेमिया रिवर्सल प्रोसीजर। इस्चेमिया मतलब खून का सप्लाई कम पड़ना, उसे इस्चेमिया कहते हैं। तो उसको रिवर्स करने की प्रोसीजर है, मतलब वो खून का सप्लाई उस हार्ट के मसल के पास पहुंचना चालू हो गया तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो इस्चेमिया रिवर्सल प्रोसीजर जो आयुर्वेद में है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पहले स्नेहन होता है, पूरे शरीर को एक स्पेसिफिक तेल जो दवाइयों का होता है उससे पूरे शरीर को हम लोग स्पेसिफिक प्रकार से मसाज करते हैं, जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन में सेंट्रीपिटल ओलिएशन कहते हैं। उसके वजह से सारे शरीर में जो खून की नलियां हैं उनमें आने वाला रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर लोड कम हो जाता है। दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड, पूरे शरीर को दवाइयों से बनी हुई स्टीम होती है, वो स्टीम दी जाती है जिससे पूरे खून की नलियों की जो लाइनिंग है वो डिस्टेंसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, वैसोडाइलेटेशन हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर आने वाला प्रेशर फिर से कम हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज बस्ती, जिसमें एक इनिमा जैसे कैथेटर अंदर डालते हैं एंड 120 to 150 ml की दवा हम लोग अंदर डाल देते हैं, जो दवा अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होकर के हार्ट के पास पहुंच गई तो खून का सप्लाई बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो ये प्रोसीजर करते हैं इस्चेमिया रिवर्सल प्रोसीजर हमारे माधवबाग के कोई भी क्लिनिक या कोई भी हॉस्पिटल में। और इसी के साथ ये जब टेस्ट होती है तो ये टेस्ट के साथ हम लोग देते हैं एक डाइट किट। डाइट किट मतलब क्या, एक 6 से 7 किलो वाला बॉक्स होता है जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, चाय, सूप, एवरीथिंग। द पेशेंट डजंट हैव टू गो हंटिंग फॉर एनीथिंग। ये डाइट किट उठा करके पेशेंट को दे दिया। पेशेंट से हम इतनी दरख्वास्त करते हैं कि आप इसको छोड़ के दूसरा मत कुछ खाओ।
करेक्ट। तो पेशेंट इफ ही फॉलोज ही रिवर्सेस हिज ब्लॉकेजेस, ब्लड सप्लाई पंचकर्मा से बढ़ जाता है, सो दोनों भी चीज़ें प्रॉब्लम हट गई। तो एट द एंड ऑफ 3 months व्हेन वी रिपीट दिस FFR या तो फिर CT एंजियो विथ वॉल्यूमेट्रिक प्लाक असेसमेंट, ब्लॉकेज कम होते हुए दिखाई पड़ते हैं, खून का सप्लाई बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। ये ट्रीटमेंट आपने कहा वो एक टाइम होता है या बार बार एवरी? हाँ, ये जो ट्रीटमेंट होती है इसके एज पर द ब्लॉकेज परसेंटेज दैट यू मेंशन, कभी कभी इस ट्रीटमेंट के 14 सेटिंग्स लगेंगे, कभी कभी 21 लगेंगे, कभी कभी 26 या 27 लगेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ब्लॉकेजेस दैट यू हैव। अगर 80-90% के ब्लॉकेजेस है तो उसको शायद 21 से 26 सेटिंग्स लग सकते हैं, लेकिन 50%, 70% का ब्लॉकेज है तो अबाउट 14 सेटिंग्स कैन डू द जॉब। और कितने टाइम में पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है? यूजुअली इट टेक्स अबाउट एवरी 3rd डे ये एक सेटिंग की जाती है। तो किसी को सीवियर हार्ट अटैक है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, अभी ड्यूरिंग द हार्ट अटैक ये एपिसोड जो होता है ना, ये 6 घंटों का एपिसोड होता है। 6 घंटे का एपिसोड मतलब? हाँ, मतलब समझो अभी मुझे हार्ट अटैक आ रहा है तो हार्ट अटैक जो आता है वो ब्लड क्लॉट के वजह से आता है। ओके। जो खून की नली थी उस खून के नली में जो ब्लड दौड़ रहा था, बीच में ब्लड क्लॉट निर्माण हो गया, तो ब्लड क्लॉट सारे खून को ब्लॉक कर देता है और खून को ब्लॉक करने की वजह से उस हार्ट के मसल के पास खून का सप्लाई पहुंचना बंद हो जाता है और वो 6 घंटों तक की मारामारी चलेगी। मतलब बेसिकली पहले से कुछ इंडिकेशन हमें मिल जाएगा? यस, इंडिकेशंस 100% मिलते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो 6 घंटे वहाँ पे ये अटक के बैठेगा, आइदर शरीर में 6 घंटों के बाद आइदर हार्ट का वो मसल जिंदा रहेगा या तो फिर ये ब्लड क्लॉट जिंदा रहेगा। ओके। 6 घंटों में इफ एट ऑल योर बॉडी इज क्वाइट स्ट्रांग and it has all those specific enzymes which are supposed to break this blood clot, अगर वो enzymes आपके पास तैयार है तो वो आकर के इस blood clot को तोड़ करके पूरा क्लीन कर देंगे and the blood will flow ahead। ये 6 घंटों में इधर blood clot टूटेगा या तो हार्ट का मसल टूटेगा। जो भी टूटेगा वो हार गया, ऑपोजिट पार्टी जीत गई। ओके। ये होता है हार्ट अटैक। Great. You have mentioned that Ayurveda's history is more than 5,000 years. Then why India hasn't take the global ownership of this medical science? Normally what happens, to take the global ownership there are 2-3 multifactorial things which are responsible। सबसे पहला क्या होता है, राजाश्रय। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया supports Ayurveda, like the present government right now is working hugely for Ayurveda, so salute to the present Prime Minister, he is working relentlessly for Ayurveda progress, so I am happy with it। so ये जब राजाश्रय आ जाता है आयुर्वेद को एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। जैसे अभी आप देखोगे योगा इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा विच इज बीन एक्सेप्टेड बाय द होल ग्लोब। so now the days when Ayurveda would also be accepted is no far। अच्छा, मतलब As आप बोल well। रहे हो जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे हो गया वैसे इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे भी हो जाएगा? एब्सोल्युटली, शुरू भी हो गया है वो। अच्छा। दिवाली के पहले दिन वो मनाया जाता है लेकिन अभी तक उसका उतना ना प्रोग्रेस नहीं। लेकिन नाउ सो दिवाली के पहले दिन यू सेड दैट इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे ये धन्वंतरी दिवस जो होता है, ओके, दैट इज इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे। यस एज वेल। सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि अब WHO, the World Health Organization, has now started accepting Ayurveda as a traditional medicine। so उनकी समिट अब होती है जिसमें सारे देशों में से लोग आकर के आयुर्वेद के बारे में डिस्कस करते हैं WHO में। so the present government has been doing a great job। so the first thing was about the government support। in the past 50-70 years there was no support to Ayurveda from the government, but now it has started। that is one। second, we people in the industry of Ayurveda have to visualize Ayurveda as a great help for the humanity। Earlier, because of certain factors, the Ayurvedic graduates themselves did not see Ayurveda as a boon। तो वो उसके कुछ कुछ कारण हुए होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सारे इंडस्ट्री में से प्लेयर्स आकर के आयुर्वेद को आगे लेकर के जा रहे हैं, आई एम श्योर इन नेक्स्ट 10 to 15 years आयुर्वेदा के लिए अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, क्योंकि वो चेंजेस अपने को दिखाई पड़ेंगे। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स एलोपैथी। जैसे मैंने बताया कि जब मैं एलोपैथी पढ़ रहा था तब पैथोलॉजी हार्डली कुछ हुआ करता था।
ओके। बट नाउ इट हैज़ बिकम अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। लोग अभी डिसाइड करते हैं मुझे साल में एक बार चेकअप कर लेना है मेरे खून का। तो अर्लियर दिस वॉज नॉट देयर। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 94, 99, 1999 वगैरह, तब पैथोलॉजी को बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ अच्छा, करता मतलब था। पिछले 20 साल में इतना चेंज हुआ है। एब्सोल्युटली। सो ये जब आयुर्वेद के साथ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन जुड़ जाते हैं, सो नई टेक्नोलॉजी जब आयुर्वेद के साथ जुड़ जाती है, अब जैसे AI, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ दिस आयुर्वेदा ऑल्सो। सो ये जब नई नई चीज़ें उसके साथ जुड़ जाएंगी, आयुर्वेद वुड बी द नेक्स्ट एक्चुअल बिग इंडस्ट्री फॉर इंडिया। ग्रेट। नॉर्मली जब किसी को हार्ट अटैक आता है, सो बेसिकली देयर इज अ टर्म कॉल हार्ट डिजीज। तो इंडिया में मेजॉरिटी पब्लिक बिलीव दैट मतलब हार्ट डिजीज का मतलब है हार्ट अटैक। क्या अलग कोई टर्म्स है हार्ट अटैक के अलावा भी जिसे हार्ट डिजीज के अंदर बहुत क्लासीफाई सारे, रहते बहुत सारे। मतलब मैं तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया, पूरे हार्ट डिसीज के जर्नी में जो 20, 25, 40 साल की जर्नी होगी उस पेशेंट की हार्ट डिसीज की, उसमें हार्ट अटैक का समय सिर्फ 6 घंटों का है। तो 20-25 साल के हार्ट डिसीज के जर्नी में सिर्फ 6 आवर्स की जर्नी हार्ट अटैक की होती है। बाकी एवरीथिंग इज अ क्रॉनिक डिसीज। लोग हार्ट डिजीज मतलब सिर्फ हार्ट अटैक जानते हैं, लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले कोई बड़ा एपिसोड होता है। जैसे महाभारत का युद्ध, वो 16-17 डेज का लोग जानते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी कहानी थी, उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है, वो ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करता, वो सिर्फ 16-17 डेज का होता है। वैसे ही हार्ट अटैक का होता है। तो हार्ट अटैक आने से पहले, कई साल पहले से बॉडी गिव्स यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। एज वेल हार्ट अटैक के बाद द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द क्वांटिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो गेट्स कॉम्प्रोमाइज टू अ वेरी हाई लेवल। सो लोगों ने ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक ये सिर्फ एक छोटा स्टेशन है ये इस पूरे ट्रेन जर्नी का। तो उससे पहले कई बार बॉडी बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे आपको चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त हांफना पड़ता है। अगर ट्रेन की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमने कई लोगों को देखा होता है बाजू में रुक करके सांसें भरते रहते हैं, वो सारे होते हैं पेशेंट्स जो आगे जा कर के हार्ट के अटैक के शिकार होने वाले हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैरों पे सूजन होती है। पैरों पे सूजन होने का मतलब ये होता है कि द हार्ट इज नॉट वर्किंग सो एफिशिएंटली, हेंस देयर इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा सीने में कंटिन्यूसली दर्द होते रहता है। तो ये सारे छोटे छोटे होते हैं सिम्टम्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट बीच में टाइट हो जाता है, फुल हो जाता है, एकदम गैस भर गया ऐसे महसूस होता है, ये भी सिम्टम होता है हार्ट डिसीज़ का। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है और फिर बीच में ही नॉर्मल आ जाता है, ये भी सिम्टम हो सकता है हार्ट डिसीज अच्छा, का। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज आल्सो सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। एब्सोल्युटली। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो दैट इज अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज, कि आपका हार्ट अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा आपके ब्लड प्रेशर को। ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट आपको दिखाते रहता है पहले कई सालों तक, लेकिन कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं एंड देन दे फॉल अ प्रे टू दिस हार्ट अटैक। अगर किसी को पहले से जानना है कि हार्ट अटैक्स फ्यूचर में अगर होने वाला है या हो रहा है, सो क्या क्या फैक्टर्स उनको ध्यान में रखने चाहिए? पहले तो सिम्टम्स जैसे अभी बताया मैंने कि चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जैसे हांफना होता है, सीने में दर्द होता है, कभी कभी लेफ्ट जॉ में पेन होता है, लेफ्ट हैंड में पेन होता है, लेफ्ट पीठ में पेन होता है, कई सारे ऐसी चीज़ें होती है। वैसे ही पेट को टाइट हो जाना, गैसेस काफ़ी होना, खाना खाने के बाद पेट कभी कभी पूरा पैक हो जाता है, वो डकार आते हैं, कभी कभी वो पूरा कंजेशन चेस्ट में फील होता है, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन लीविंग द सिम्टम्स असाइड, देयर आर फ्यू इन्वेस्टिगेशंस दैट एनीबडी कैन डू। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन मतलब पैथोलॉजी।
खून की जांच। अगर खून के जांच में यूजुअली सबको पता होता है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल पता होता है, लेकिन ये सारे पुराने इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब नए इन्वेस्टिगेशंस दिखेंगे तो एपोलाइपोप्रोटीन A1 एंड एपोलाइपोप्रोटीन B करके इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ये तो बहुत स्पेसिफिक मार्कर है कि अंदर आपके शरीर में ब्लॉकेजेस निर्माण हो रहे हैं कि नहीं। तो एपोलाइपोप्रोटीन A1 अगर 100 के ऊपर है तो सबसे बढ़िया, 200 के नज़दीक है यू डोंट हैव ब्लॉकेजेस। लेकिन एपोलाइपोप्रोटीन B अगर 100 के ऊपर है तो ब्लॉकेजेस निर्माण होने शुरू हो गए हैं। इमीडिएटली यू विल हैव टू टेक द स्टेप। So starting with medicine से we can 100%। okay 100%। अगर आपने जल्दी से जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर दिया तो वी कैन हेल्प यू टू रिवर्स दोज ब्लॉकेजेस वेरी वेरी अर्ली, इसमें कोई दो बात नहीं। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन ये ब्लड वाला। ब्लड में और भी ऐसे कई सारे इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे आप HSCRP करके देख सकते हो कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना अंदर हो गया, बॉडी के अंदर खून की नलियों में सूजन कितनी आ गई है। तो वो सूजन ही कल जा करके आपको ब्लॉकेजेस निर्माण करने वाली है। तो HSCRP हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, ऐसा एक टेस्ट होता है पैथोलॉजी में। आप वो कोई भी इंटरनेट पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, वो टेस्ट आप करा दो। कैसे पता चलेगा कि हमें ये ऐसा कुछ टेस्ट मतलब कि चेंज करवाना है या फिर ज़रूरत है? हाँ सिंपल है, ये सिम्टम्स अगर आते हैं तो सिम्टम्स तो पहली चीज़ है, क्योंकि बंदे को पहले सिम्टम्स फील होंगे। उसी के साथ अगर समझो सुबह उठने के बाद भी थकावट महसूस हो रही है, कंटाल आ रहा है, मुझे मेरे लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, दिस कैन बी वन ऑफ द सिम्टम कि आपने ये टेस्ट करवा के लेने की ज़रूरत है। थकान के लिए एब्सोल्युटली एज वेल। शाम को 6 साढ़े 6 के बाद अगर मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द सिम्टम। अगर रात को नींद में अगर पैर के पिंडरियों में अगर आपको क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं, दिस अगेन कैन बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज। रात के नींद बीच में टूट रही है और बार बार मुझे उठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मेरा रात में ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप होना चाहिए वो बढ़ रहा है, इसके लिए मुझे बार बार नींद टूट रही है। दिस अगेन कैन बी अ सिम्टम। नॉर्मल स्नोरिंग जो होता है, अच्छा वो भी सिम्टम्स है। स्नोरिंग भी एक सिम्टम हो सकता है हार्ट डिसीज का। तो कई सारे सिम्टम्स है, बॉडी आपकी आपको डिफेंड कर रही है बाय शोइंग दिस सिम्टम्स। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज ऑफ यू हैव बीन सीइंग दिस सिम्टम्स। तो ये कई सारे इन्वेस्टिगेशन है एज वेल। इसके बाद मैं तो ऐसे सबको बोलूँगा, सबने साल में एक बार खुद की स्ट्रेस टेस्ट, मतलब वो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट जो होती है, ट्रेडमिल टेस्टिंग टेस्ट जो होती है, वो साल में एक बार करानी ज़रूरत है आफ्टर द एज ऑफ 40-45। कि हार्ट में एक्चुअल हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने की ताकत आपके शरीर में है भी कि नहीं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ट्रेडमिल टेस्टिंग जो होती है, इसमें एक पैरामीटर होता है कॉल्ड एज VO2 मैक्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बता के रखा हुआ है, इंडिविजुअल प्रेडिक्टर ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइफ है कि आपका VO2 मैक्स अगर मेल्स में 35 के ऊपर है और फीमेल्स में अगर 30 के ऊपर है, यू आर सुपर फिट। हार्ट अटैक आने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर यही VO2 मैक्स अगर 12 या 15 से कम है तो हार्ट अटैक आने के बाद कुछ सच नहीं। तो ये अगर सिंपल सी हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग करवा ले और VO2 मैक्स जान ले तो डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्शंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इन्वेस्टिगेशंस है जिससे आप ये जान सकते हो कि अंदर चोर बैठा है या नहीं। ग्रेट। ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स विच मॉडर्न मेडिसिन इग्नोर्स टुडे? डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स कई सारे। व्हाट हैपेंस ना, मॉडर्न मेडिसिन डजंट इग्नोर। What happens many times it has been ignored by the general population. कई बार ऐसे दिखाई पड़ता है कि स्ट्रेस टेस्ट मेरी बहुत मैं ज़्यादा चल नहीं पाया हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ स्ट्रेस टेस्ट, स्टिल पेशेंट्स मेनी टाइम ट्राई टू अवॉइड टेकिंग स्टेप्स और मेजर्स अगेंस्ट इट। तो ये अवेयरनेस बढ़ने की ज़रूरत है लोगों में। तो लोगों को ये पता चलना चाहिए अगर मुझ में ये कमी दिखाई पड़ी है तो करना है क्या है, सिंपल डाइट के मेजर्स करने हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस से शुरुआत कर लेनी है। इतने सिंपल 2 चीज़ें कर लिए, रिस्क नहीं लेना है। एब्सोल्युटली। सो ये सिंपल चीज़ें करने से रिस्क पूरी तरह से अगर गायब हो सकती है तो व्हाई नॉट टू गो अहेड फॉर इट।
बट मेनी अ टाइम्स वी ट्राई टू अवॉइड थिंग्स कि आज प्रॉब्लम नहीं है या ना, फिर लाइटली ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है ना, पूरी फैमिली उसके साथ अटक जाती है। पूरे फैमिली पे जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, बर्डन आता है, फाइनेंशियल तो है ही है, लेकिन बाकी सोशल बर्डन है, Mentally pressure। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ह्यूज हो जाते हैं। सो काइंडली आई वुड ऑलवेज लाइक टू टेल एवरीबडी, खुद की अच्छी केयर लो, सिम्टम्स को अवॉइड मत करो, act immediately onto it, and there would be a complete disease free nation building up in some more years. क्या हार्ट अटैक हेरिडिटी से आते हैं? एक्चुअली स्पीकिंग जेनेटिक्स जो होते हैं, हार्ट अटैक के जीन्स वो शरीर में आते हैं फ्रॉम माई मदर एंड फादर, बट दैट डजेंट नेसेसरीली मीन कि मुझ में जेनेटिक्स आ गए हैं मतलब मुझे हार्ट अटैक होना ही चाहिए। नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि नाउ बियॉन्ड जेनेटिक्स देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स। मतलब भगवान ने आपके शरीर में वो जीन्स तो दे दिए हैं, लेकिन इफ एट ऑल यू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल यू विल बी एबल टू सप्रेस दीज बैड जीन्स। ओके। एंड अगर आपने बैड लाइफस्टाइल रख ली तो अच्छे जीन होने के बावजूद आप बैड जीन्स को एक्सप्रेस कर दोगे। सो वेदर इट इज जेनेटिक, हार्ट अटैक जेनेटिक है क्या? तो नहीं। आई वुड रैदर से दैट हार्ट अटैक इज लाइक एन एक्सीडेंट। आपने अच्छी गाड़ी अच्छी तरह से नहीं चलाई तो एक्सीडेंट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, नॉट नेसेसरी कि पीछे से आकर के कोई ठोक नहीं सकता। सो हार्ट अटैक इज लाइक एन एक्सीडेंट। किसी किसी को लाइफ में उस एक्सीडेंट के दौर में से जाना पड़ता है, उसे इतना आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आसान रखेंगे तो काम बहुत ईजी हो सकता है। आयुर्वेदा से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? हम उल्टा बात करेंगे कि आयुर्वेद से कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, क्योंकि इफ एट ऑल यू गो थ्रू द आयुर्वेदिक टेक्स्ट, आई हैव रेड कार्डियोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी टू अ हाई एक्सटेंट। बाकी मैंने ज़्यादा आयुर्वेद में पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे जो दिखाई पड़ता है, आयुर्वेद हैज़ एन आंसर टू मोस्ट ऑफ द डिसीजेज दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. So I would say that Ayurveda is a mechanised gold. जितना आप अंदर जाओगे उतना नया साइंस बाहर निकलेगा, एंड देयर इज अ ह्यूज अनएक्सप्लोर्ड एरिया येट टू बी एक्सप्लोर्ड. तो आयुर्वेद में सारे डिसीजेस की थेरेपी है, उसको अच्छी तरह से समझ के मॉडर्न टाइम्स से जोड़ करके हमें उसे प्रेजेंट करने की ज़रूरत है. कुछ कुछ और रिसर्चेस उसमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ये सब लिख के रखा हुआ है. नाउ इट नीड्स रिसर्च ऑन द सेम थिंग, क्योंकि कई सारे जो पेड़ हुआ करते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करते. बट बायोटेक्नोलॉजी हैज़ कम टू आवर रेस्क्यू टू अ वेरी हाई एक्सटेंट. ऑल उस प्लांट में जो एंजाइम्स हुआ करते थे वो हम बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम बना सकते हैं. तो एवरीथिंग इज अवेलेबल बिकॉज न्यूअर साइंसेस मोडालिटीज हैव कम टू दैट रेस्क्यू. तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद में काफ़ी कुछ है. हाँ, अभी तक जैसा देखेंगे तो इमरजेंसी हार्ट अटैक जो 6 घंटों का होता है उसमें अभी तक आयुर्वेद में हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है. लेकिन उस 6 घंटे के एपिसोड को छोड़ करके पहले के टाइम और बाद का टाइम जब पेशेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ गेट्स कॉम्प्रोमाइज, वहाँ पे आयुर्वेद बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज ऑफ नॉलेज आयुर्वेदिक लोगों को पता होगा? रिसर्च जो हुआ था फ्रॉम द काउंसिल, द गवर्नमेंट काउंसिल, रिसर्च जो हुआ था वहाँ पे ऐसा पता चला कि 80% ऑफ इंडियंस ऑलरेडी हैव यूज्ड आयुर्वेदा बाय सम अदर वे. जैसे फॉर एग्जांपल आप वो आयोडेक्स मलम अगर आप देखोगे दैट इज़ आयुर्वेदिक. अगर आप जो बाम इस्तेमाल करते हो पेन बाम के लिए दैट इज़ आयुर्वेदिक. विक्स अगर आपने इस्तेमाल किया दैट इज़ आयुर्वेदिक. अच्छा, विक्स यूज़ कर रहे हैं गले के लिए, दैट इज आल्सो आयुर्वेदिक. आयुर्वेदिक. अगर आपने वो जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं विक्स इन्हेलर, वो आयुर्वेदिक है. एज वेल अगर आप इनो कभी इस्तेमाल किए होंगे पेट में गैस वैस, वो आयुर्वेदिक है. विक्स एंड बाम कैसे आयुर्वेदिक हुए? वो आयुर्वेदिक है. द FDA जो है वो आयुर्वेद FDA का उसको ये है, दैट इज़ नथिंग एल्स. बट उसमें कैम्फर मेंथॉल ऑयल ये सब आयुर्वेदिक है.
ओके। सो द कंटेंट्स लाइसेंस भी आयुर्वेदा का है। कभी आयुर्वेदिक से साइड इफेक्ट्स होते हैं? कैसा है ना, ऑल दोज थिंग्स विच हैव इफेक्ट विल हैव अ साइड इफेक्ट। ओके, प्यार भी ज्यादा कर लिया उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। करेक्ट। तो आयुर्वेद तो मेडिसिन है, उसके तो होंगे ही जैसे फॉरन, लेकिन द साइड इफेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा आर नॉट डिलीटीरियस, दे आर नॉट Okay. फेटल, दे आर नॉट लीथल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जुलाब हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। देर आर नो लीथल साइड कोई इफेक्ट्स, सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। नो। और वो साइड इफेक्ट्स होने के लिए भी ना ओवरडोज बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जमाल गोटा बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर काफ़ी सारा एडवर्स इफेक्ट आएगा, लेकिन इतना खाने के लिए कोई ऐसा तो खाएगा नहीं। सो देर आर वेरी लीस्ट एडवर्स इफेक्ट्स इफ एट ऑल द एक्चुअल डोसेज हैज़ बीन फॉलोड। हमें कौन सा खाना खाना चाहिए फॉर अ परफेक्ट लाइफ और फॉर अ डेली क्या न्यूट्रिशन रहता है? ओके, आयुर्वेद में क्या बता के रखा हुआ है कि षड रसात्मक खाना हमने खाना है। षड रसात्मक मतलब क्या, आयुर्वेद में 6 रस बता के रखे हुए, टेस्ट। हाँ, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। सो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, जैसे सौर, पंचेंट वैसे यूज कर रहे हैं। परफेक्ट। सो देयर आर 6 टेस्ट विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड। सो आयुर्वेद का कहना है आपका हर रोज का खाना षड रसात्मक चाहिए। ऑल 6 टेस्ट मतलब शुड बी basically देयर। हर एक टेस्ट का हमें खाना चाहिए। यस, थाली जब आपकी बनेगी तो उसमें 6 के 6 टेस्ट वाले फूड आपके होने चाहिए। ये पहला कंसेप्ट उन्होंने बताया है। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने बताया जो भी खाना होगा ये फ्रेश खाना बनना चाहिए। फ्रेश खाना खाओगे तो काम इजी हो गया। एंड थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है कि ये खाना तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी जो अंदर की फैक्ट्री है जो उसको डाइजेस्ट करने वाली है उसमें भी उतनी ताकत होनी चाहिए डाइजेस्ट करने के लायक। तो आपके इंटेस्टाइन में जितनी ताकत है उतना ही खाना खाओ। जैसे कई बार बोला जाता है कि अपना पेट, हाँ, जो नॉर्मल एट द एडल्ट एज अपना जो स्टमक होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.5 लीटर की। अब ऐसा कंसेप्ट बोला जाता है आयुर्वेद में कि ये जो 1.5 लीटर की कैपेसिटी है उसमें से 25% पार्ट हैज़ टू बी लेफ्ट वेकेंट, उसमें खाना अंदर मत डालो। सो अगर वैसा कैलकुलेट कर ले तो 1.5 लीटर का अगर आपका खाने की स्टमक की कैपेसिटी है तो उसमें से 25% आपने छोड़ देनी है। मतलब समझो अगर हम लोग पकड़ के चले तो 500 ml जो है हम 2 मिनट के लिए बाजू में रख देंगे तो वी हैव अबाउट 1 लीटर कैपेसिटी नाउ। अब ये 1 लीटर कैपेसिटी में 25% शुड बी विथ फ्लूइड्स, liquids, and remaining 50% that you have should be made with food that you can digest easily. तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बता के रखा है वैसा अगर आपने खाना खाया तो काम इजी हो सकता है। और मॉडर्न की अगर उसमें हम लोग चीज़ें डाल दे समझने के लिए तो समझना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट फूड जितना कम होगा उतना बेहतर, जितने प्रोटीन वाले फूड ज़्यादा होंगे उतना बेहतर। एंड फैट मॉडरेट अमाउंट में आपके खाने में होना ही चाहिए। अच्छा, फैट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो होता है, हार्ट खाना जो खाता है खुद के मसल्स को वो फैट ही खाता है। जैसे ब्रेन शुगर के सिवाय दूसरा कुछ नहीं खाता, वैसे हार्ट फैट के सिवाय दूसरा कुछ नहीं खाता। सो हार्ट को अगर फिट रखना है तो फैट खाना पड़ेगा, बट इन मॉडरेट अमाउंट। अगर उसी को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो वही फैट हार्ट के लिए डिलीटेरियस हो जाता है। सो खाना कैसे होना चाहिए? तो सिंपल सी चीज़ें, अगर भूख लगी नहीं है तो खाना मत खाओ। ओके। अगर भूख लगी है तो जितनी भूख लगी है कम खाओ। उतना ही खाना खाओ या उससे थोड़ा सा कम खाना खाओ। सो खाने के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के रखे हुए, लेकिन दीज आर द सिंपल रूल्स दैट वन हैज़ टू फॉलो। अभी मैंने पढ़ा था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो गुजरात के टाइम पे जब सीएम थे तब भी उन्होंने कहा था कि आप घर में अगर ऑयल यूज़ लाओ तो 80% कम लाओ, एंड उसमें से भी आप 80% कम यूज़ करो। वेरी ट्रू। जैसे अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले पे से ये बताया हुआ था, तो वी हैव स्टार्टेड विद अ मिशन कॉल्ड एज मोटापा मुक्त भारत। ओके। Inspired by our beloved PM,
वी हैव स्टार्टेड विद दिस मोटापा मुक्त भारत, जिसमें ये जो कंसेप्ट है कि तेल कम इस्तेमाल करो, ये कंसेप्ट के साथ और हमने 10 कंसेप्ट जोड़ दिए हैं कि व्हाट आर यू सपोज टू ईट एंड व्हाट आर यू नॉट सपोज टू ईट। तो ये एक फ्री टूल है जो आप उस पर जाकर के आई हैव टॉट 10 मिनट एक्सरसाइजेस, सिर्फ 10 मिनट आप सुबह के टाइम में दे दो, वो वीडियो आपको आएंगे आपके व्हाट्सएप पे। वो सिर्फ प्ले करके आप घर में इतने 10 मिनट के भी वीडियो अगर कर लोगे, आई विल चैलेंज यू, यू विल लूज योर वेट। तो ये टिपिकल चीज़ें हमने बता के रखी हुई है। एज वेल आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड सच वीडियोस जो हम उनको देंगे कि खाने में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो 90 डेज का प्रोग्राम है इन विच द फर्स्ट 14 डेज आर कंप्लीटली फ्री। सो आप वो सीख करके चीज़ें अगर करना चालू कर दो, आई कैन बेट दैट इन 90 डेज यू विल लूज 5 to 6 kgs ऑफ योर वेट ईजीली एट होम इटसेल्फ। ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जो हम हर रोज़ इंटेक करते हैं बट इट्स मोस्ट डेंजरस? कई सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट होगी चाय। चाय में हम इतनी शक्कर डालते हैं, अगर आप टोटल बॉडी में शक्कर कितनी चाहिए अगर आप गिन लो तो एकदम सिंपल सा गणित है। आपके 5-5.5 लीटर के शरीर के खून में होती कितनी शक्कर है? तो अबाउट 5 ग्राम्स। और ये 5 ग्राम शक्कर आपको खाने से अंदर डालनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं। आपका लिवर रोज 5 ग्राम शुगर बना लेता है खुद ब खुद। ओके, सो नाउ यू नो दैट यू डोंट नीड शुगर इनटेक एट ऑल। जंगल में आप देखोगे शेर है, चीता है, हाथी है, कोई भी शक्कर नहीं खाता, इसीलिए उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम शक्कर ही इतना खाते हैं कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो द फर्स्ट थिंग टू बी अवॉइडेड इन द फूड इज गोइंग टू बी शुगर। अब सेकेंड चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए, जो अति मात्रा में हम खाते हैं, वो है नमक। नमक हम इतना ज़्यादा खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा लिए उसमें नमक, ब्रेड खा लिया उसमें नमक, आपने बटर खा लिया उसमें नमक, हर एक चीज़ में नमक होता है। तो ये नमक हम इतना अंदर डालते हैं, एज पर द डेली रिक्वायरमेंट यू नीड ओनली 2.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम। मतलब वो आपने नमक खा लिया, टाटा नमक कोई, तो 5 ग्राम का नमक हैज़ 2.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम। अगर आप 5 ग्राम ही नमक दिन भर में खाते हो, परफेक्ट। लेकिन आप अगर देखोगे फ्रेंच फ्राइज का बोल मंगा लिया, उसी एक में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक होता है। अगर आप ब्रेड खाओगे, बिस्किट खाओगे, सब में नमक होता है। ट्राई टू अवॉइड शुगर and salt. These are the most deleterious things. And the third most worst thing is going to be anything that is preserved, anything that is packaged. पैकेज्ड फूड को हमें प्रिजर्व करने के लिए हमें उसमें शक्कर या तो नमक डालना ही पड़ता है। तो जितने पैकेज्ड फूड्स को अवॉइड करेंगे उतना बेहतर। Do you believe that heart disease is mostly a metabolic issue rather than a plumbing issue? Absolutely. It is an absolute metabolic disease only. Plumbing issue तो 1990s में माना जाता था। The things have changed, the science has gone far ahead. It is a complete metabolic issue. उसमें metabolic disorder ही होते हैं। Heart disease कभी अकेला नहीं आता, उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती है, मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स अंदर होते हैं और लास्ट में दिखाई पड़ता है हार्ट प्रॉब्लम। तो पहले डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या तो फिर एनीमिया है, थायराइड है, ओबेसिटी है, या तो फिर इंटरनल बॉडी के अंदर अवयव जो होते हैं उसके अंदर फैट्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अंदर होते हैं, पीसीओडी होता है, कई सारी चीज़ें होती है और लास्ट में दिखाई पड़ता है हार्ट अटैक। आई हैव हर्ड वन कोट, in fact there were 2 quotes. पहला कोट ये है कि हार्ट हेल्थ इज नॉट बिल्ट इन टैबलेट, इट्स बिल्ट मील बाय मील एंड हेल्थ बाय हेल्थ. एंड अनदर कोट इट वाज, इफ वी ट्रीट symptoms, or I would like put into this way that if we treat cause, symptoms disappear, but if we treat symptoms cause won't patients remain. एब्सोल्युटली अगर सिर्फ सिम्टम ट्रीट करोगे तो जिंदगी भर पेशेंट बने रहोगे, लेकिन अगर कॉज ट्रीट कर दिए
तो एक दिन भी पेशेंट बोल के जिंदगी रहनी नहीं पड़ेगी. सो सिंपल सी बात है कि कॉज को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद इज द बेस्ट रेमेडी, बिकॉज आयुर्वेद ट्रीट्स द बेसिक कॉज, रूट्स पे वो ट्रीट करता है, सिम्टम्स पे नहीं. वाइल इन एलोपैथी वॉट एवर आई हैव लर्न, सिम्टम्स ज़्यादा ट्रीट होते हैं, कॉज नहीं. अगर बुखार आया है तो क्रोसिन ले लो, बुखार चला जाएगा, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम था वो वहीं रहता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो स्टैटिन ले लो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, लेकिन अंदर जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम था जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था वो तो वही बैठा हुआ है. मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब किसी को फीवर आते हैं दे स्टार्ट डूइंग फास्टिंग, वो खाना ही छोड़ देते हैं. Is it true? 100%. See, what is the basic science behind it? फीवर जब आता है तो इसका मतलब अंदर के बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया हुआ करते थे, दे हैव डाइड एंड द नॉन हेल्दी बैक्टीरिया हैव टेकन ओवर. अब अगर आपने खाना इस पोजीशन में खाया तो ये नॉन हेल्दी बैक्टीरिया विल क्रिएट मोर नॉन हेल्दी बैक्टीरिया आउट ऑफ दिस फूड एंड द फीवर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. एंड इवन दो यू ट्राई टू हाइड दिस फीवर विद एंटीपायरेटिक्स, the fever will hide but the inflammation will continue. But if at all you fast, तो ये अनहेल्दी बैक्टीरिया 72 आवर्स से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते. तो अगर फीवर है तो 24 आवर्स फास्टिंग विल किल 70% ऑफ दिस नॉन हेल्दी बैक्टीरिया. And in next more 24 hours you will be absolutely good enough, super healthy to start with your action from the next day. क्या हमें वीक में एक बार फास्ट करना चाहिए? 100%. I would rather say, आपने अगर पढ़ा होगा, Japanese scientist has got a Nobel Award on a concept called autophagy. क्या है? Autophagy is nothing else but उपवास. अच्छा, तो भारत में जो उपवास की पूरी नींव रखी गई है उसके ऊपर नोबेल अवार्ड मिला है जापानीज साइंटिस्ट को. उन्होंने ये दिखा के दे दिया है कि ऑटोफेजी मतलब फास्टिंग करने के वजह से आपके शरीर में स्टेम सेल्स निर्माण हो जाते हैं. स्टेम सेल्स मतलब द मोस्ट न्यूएस्ट रिसर्च इन मॉडर्न मेडिसिन, कि स्टेम सेल अपने इसमें फिर से इंजेक्ट कर दो तो डैमेज स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो रीजनरेट. तो लिवर रीजनरेट हो सकता है, हार्ट रीजनरेट हो सकता है, आंखें रीजनरेट हो सकती है. ये होते हैं स्टेम सेल्स, और यही स्टेम सेल्स आपके फास्टिंग से आपके शरीर में आप निर्माण कर सकते हो. आई थिंक सो दिस इज द रीजन व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर इज फिट. एब्सोल्युटली. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो एक फास्ट रहता है, जैसे गुजराती आप देखोगे महीने में, सो एक चतुर्मास का टाइम आता है वेयर ही ईट्स ओनली वन टाइम, देन ड्यूरिंग द नवरात्रि ही डजंट ईट एनीथिंग, 9 days complete fast. Then after again in the second नवरात्रि, like चैत्र मंथ की जो नवरात्रि है, he only select one fruit on the first day of नवरात्रि, and वही फ्रूट हर रोज 9 दिन तक एक ही टाइम वो लोग वो कंज्यूम करते हैं. Absolutely. And he's so super healthy. I had the opportunity to meet our PM. सामने उनसे बात हुई है. Wow. We have inducted him about Ayurveda and the whole Madhavbag processes that we do, and he had given me about 3.5 minutes to understand whatever we do. So I was super blessed that I had that opportunity. उनके साथ? अरे बहुत, मतलब I was first zapped to see how healthy he is. मैंने सुना है कि he is a great listener. He didn't even speak a single word when I was speaking. Attention पूरा था. I was blessed कि मेरे नसीब में ये दिन आया था. super excited and super happy about that moment. तो उन्होंने जो सुन के ले लिया, फिर बाद में उन्होंने उनके टीम से बताया था कि ये पूरा आगे आप उनसे बात कर लो. So that was a super moment in my life. लेकिन मैंने जब उनको उनके गाड़ी से उतरते हुए देखा था, at this age of mine I am not so super healthy as what he is. That is super, मतलब वो कुछ अलग ही है. And that too working for 18 hours constant. And at this age. At this age, he is currently 75. Super healthy. If you notice in today's generation, especially Gen Z, there has been crazy speed for increasing the chance of heart attack. True. Reasons are very, very obvious. Stress. One is stress, the worst reason.
Gen Zs now take their life so seriously. मे बी उनको हम ही लोगों ने शायद आदत डाल दी है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, कंपटीशन होने की वगैरह वगैरह. बट आई हैव सीन दैट दीज जेंजीज टेक अ ह्यूज सुपर स्ट्रेस ऑफ स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो. मैंने जो सीखा है इतना ही सीखा है, लाइफ अनफोल्ड्स इटसेल्फ. ट्रू. हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, वही चीज़ें होंगी. जस्ट एन्जॉय वॉट एवर इज़ हैपनिंग विथ यू. ये अगर जेंजीज करना चालू कर दे, हार्ट अटैक वेव विल डिसअपियर. दैट इज़ वन. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो खेल कूद उन्होंने करना चाहिए अर्लियर चाइल्डहुड लाइफ में, वो छोड़ करके वो किसी और ही चीज़ में मशरूफ़ है. मे बी ऑन द कंप्यूटर्स, मे बी ऑन द टैबलेट्स, मे बी ऑन OTT, कुछ अलग ही चल रहा है. जैसे आपने जो पॉइंट निकला ना, तो यस्टरडे ओनली वी द रूममेट्स वर टॉकिंग दैट जेंजीज स्पेशली जिसका बर्थ ईयर लेस देन 2000 to 2003 तक है, we are blessed that we have lived that life, that childhood. Actually, we मिट्टी enjoyed से every खेले हुए moment. हैं. जब हमारा समर वैकेशन रहता था, मिट्टी से खेले हुए हम इतने फिजिकल गेम प्लेड नो कि घर वाले परेशान होते थे कि कब इनके स्कूल स्टार्ट हो. एंड आई थिंक दैट वाज द रियल रीजन फॉर द फिटनेस. Very true. Very true. And that is what they have lost. So they should go back and But learn. I think so. I think in today's scenario, parenting is also one of the important factor. कि कोई भी एक बच्चा रोने Very लग रहा है, Very true. पेरेंट्स उसको मोबाइल दे देते हैं एंड टेक से. What has happened is, in this today's competitive world, everybody is so stressed कि उनको एडिशनल स्ट्रेस नहीं चाहिए. ट्रू. इसके लिए वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, मैं छूट गया, नाउ यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट दैट इज नॉट द राइट वे. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे खेलकूद नहीं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिंज ईटिंग. अननेसेसरी खाना खाते रहेंगे एंड विल क्रिएट एंड प्रॉब्लम्स. उसके पीछे का रीजन ही है बिकॉज दे फील लोनलीनेस. True, very true. But I would like to advise those people in that generation that start enjoying the world outside. True. They have locked themselves inside those four doors inside. I would always like to advise, बाहर जाकर के खेल कूद कर लो. Life is very beautiful. Enjoy every moment of it. ट्रू. सो मेरा भी एक रूटीन है. सो आई बिलीव टारगेट बेस्ड टाइम टेबल. अगर समझो कि मेरा टारगेट है 12 घंटे का काम करने का, अगर मेरा 10 घंटे में हो गया, देन आई विल यूटिलाइज योर 2 hours in just roaming here and there. Very good. And normally when you start roaming, you start learning more compared to Actually. sitting lonely in the room. Actually, Just बाहर जब absurdly आप निकलोगे निकल नई जाओ चीजें घूमने के लिए. दिखेंगी. अगर कुछ भी नहीं देखने के लिए, just saw the tree, saw the street, saw the road. That is also the one of the learning Very point. true. Very true. Perfectly right. I have read one quote in the book which says that stress is most dangerous compared to smoking. 100%. You are absolutely right. स्मोकिंग अपने शरीर में जितने डिलीटेरियस इफेक्ट करता है, उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस करता है. क्योंकि स्ट्रेस कंटिन्यूस आपके साथ रहता है. स्मोकिंग तो एटलीस्ट 10 सिगरेट्स अ डे होंगे. स्मोकिंग एवरी मोमेंट आपको प्रॉब्लम करता है, लेकिन एवरी मोमेंट 10 टाइम्स प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रेस करता है. सो स्ट्रेस इज द वर्स्ट किलर. आयुर्वेद में 5000 सालों पहले के बता रखा हुआ है, चिंत्यानाम अति चिंतनात् इति रसवाहिनी दुष्यंती. मतलब हार्ट डिजीज के लिए सिर्फ एक कारण है, वो है Stress, tension. Do you believe that personalized diet in the form of Prakriti will become the future of medicine? 100%. 100% it will, and it has already started. So, identifying the Prakriti of an individual person, whether it is Vata, Pitta, Kapha, or a combination of all these Prakritis in various different proportions, has to be the key towards success. Nowadays, this Prakriti analysis has also been connected to the gut biome. So, पेट में जो आपके बैक्टीरिया बैठे हुए रहते हैं, उनसे ये प्रकृति मैच करके खाने में क्या होना चाहिए, ये भी डिसाइड किया जाता है. That is going to be the future, no doubt about it. One secret of human body
which modern science hasn't discovered yet, and it might not discover in the future also. It's about the way that you live your life. Modern medicine doesn't understand mind. Modern medicine understands the brain. It doesn't understand the mind. Hence, स्ट्रेस रिलीविंग अगर मॉडर्न मेडिसिन में देखेंगे तो स्लीप जनरेटिंग मेडिसिन क्या क्या डिफरेंस है ब्रेन माइंड्स में? बहुत बड़ा डिफरेंस है. ब्रेन इज द एनाटॉमी, माइंड इज द फिजियोलॉजी. ओके. स्ट्रेस अगर लेते हो तो कहाँ पे है ब्रेन में स्ट्रेस? देयर आर स्ट्रेस सेंटर्स बट देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है. तो माइंड आयुर्वेद में जो बोल के रखा हुआ है, प्रकृति एज वेल एज रज तम गुण जो बता के रखे हुए हैं, ये गुण समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आयुर्वेद में बता के रखा हुआ है हृदयम द्वौ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब हार्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, ऐसे उसने बोला है. हृदयम द्वौ तटस्थिते, दोनों एंड्स पे बैठा हुआ है. वक्षसो अंतरम, इनसाइड ऑफ बोनी केज. हेयम च देयम च, मतलब लेना और देना दोनों काम है. जैसे ब्रेन का सेंसरी आता है, मोटर जाता है. हार्ट में जैसे इम्प्योर आता है ब्लड, आउटपुट जाता है प्योर ब्लड. सो ये सारा आयुर्वेद में बता के रखा हुआ है कि मन आपके हृदय में होता है. ओके. तो वो मन जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रेस के वजह से, वर्स्ट अफेक्शन इज ऑन योर हार्ट. True. Today, no, most of the people on social media, they claim that their diet is top, their diet is best. Like आप देखोगे कि keto people who says that eat low fat food which burns your fat. If you see of vegan people, they say that eat plant based food. So which popular food beliefs are actually wrong? मेरे हिसाब से ना कोई खाना गलत नहीं होता, खाना हमेशा सही है. प्रॉब्लम ये है कि आपके इंटेस्टाइन में उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एडिक्वेट एंजाइम्स है या नहीं. सो खाना कभी गलत नहीं हो सकता. एक खाना जो उसके लिए बहुत तंदुरुस्ती लाता है, वही खाना किसी और के लिए तंदुरुस्ती नहीं लाता है. ऐसा होता है क्या कि अगर मैंने कुछ खाना खाया है, मेरे लिए कुछ अलग इम्पैक्ट होगा, आपके लिए कुछ अलग इम्पैक्ट होगा? 100%. Like for example, everybody who has a lot of proteins doesn't build the same kind of muscles. But at the same time, there are so many people who never have proteins but still their muscles are stronger. क्यों? क्योंकि वो प्रकृति है अंदर. उस प्रकृति को जानना ज़रूरी है. उस प्रकृति पे होता है कौन से एंजाइम्स कौन से टाइम पे लिबरेट होंगे और वो कौन से फूड को डाइजेस्ट करने वाले हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इसीलिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके इंटेस्टाइन में वो सारे एंजाइम्स बराबर टाइम पे सिक्रीट हो रहे हैं या नहीं. सो द फूड, जैसे वेगन फूड है या कीटो फूड है, फूड के अलग अलग टारगेट्स है, फूड के अलग अलग आपके जो खाने के उसूल है. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वेदर यू हैव दैट प्रोडक्शन मैकेनिज्म इनसाइड और नॉट. सो फूड इज जस्ट अ रॉ मटेरियल. प्रॉब्लम आपके फैक्ट्री में है, रॉ मटेरियल में नहीं है. काम करना है तो खुद के फैक्ट्री पे काम करो, रॉ मटेरियल पे नहीं. वन लास्ट क्वेश्चन, क्या एक आइडियल लाइफस्टाइल होनी चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर? ओके, आयुर्वेद हैज़ ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस बेस्ट लाइफस्टाइल. एक सिंपल तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आयुर्वेद का कहना है दोपहर का खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ व्हाट यू शुड हैव व्हेन एवर द सन इज़ देयर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड. मतलब 12 से 2 के बीच में दोपहर का खाना पेट में जाना चाहिए. अब अगर 12 से 2 के बीच में दोपहर का खाना पेट में जाना चाहिए तो उससे 4 घंटे पहले आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए. मतलब 8-9 बजे. यस. सो 7 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए. तो आयुर्वेद का कहना है कि ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले आपके एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए. ओके. सो आपने 6:30 से 7 के बीच में आपकी एक्सरसाइज खत्म करनी चाहिए. अगर 6:30 के 7 के बीच में एक्सरसाइज होनी चाहिए तो उससे आधे घंटे पहले आपने उठ करके आपके नॉर्मल क्रिया आपने कर लेनी चाहिए. सो नाउ इफ एट ऑल वी पुट इट
across 5:30 or 6 o'clock you should get up. 6:30 to 7 you should exercise. 7 to 7:30 बाकी कुछ करना होगा. 7:30 to 8:30 आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए. 12:30 to about 2:30 के बीच में आपका खाना हो जाना चाहिए दोपहर का. दोपहर के खाने के 4 घंटों के बाद आपका इवनिंग ब्रेकफास्ट अगर आपको चाहिए तो वो लेना है, और उसके 4 घंटों के बाद आपका रात का खाना हो जाना मैंने चाहिए. सुना है कुछ लोग रात को इवनिंग स्नैक्स ही नहीं करते, दे जस्ट ट्राई टू ईट एट अराउंड 6:30. सुपर, सबसे बेस्ट. हमेशा ध्यान में रखें, सन इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स. सन जब सेट हो जाता है उसके बाद नहीं खाना चाहिए. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी फैक्ट्री को ताला लग जाता है 6-6:30 के बाद. अब उसके बाद आप जो भी मटेरियल अंदर डालोगे कल तक वो वैसा ही रहने वाला है. तो 6-6:30 के बाद अगर आप जितना कम खाना खाओ सबसे बेहतर होगा. तो ये दिनचर्या अगर फॉलो कर लेते हो, यू विल नेवर बी एट एनी डिसीज. ट्रू. थैंक यू सो मच. होप यू एंजॉय द एपिसोड. अरे, अ लॉट.